let me deal with this once again. Well, in the last one we picked up addition of more than two vectors. For two vectors, you know that the methods are two graphical methods, that is parallelogram law and triangle law, and we have a analytical method based upon the formula. And then we were wanting to learn some technique for adding more than two vectors. I said that you don't require any new technique at all, because if you can add two, then you can add any number of vectors. That is what we have manifested in this repeated use of parallelogram law. We were required to add these three vectors. First we added a and b, if you can see here, the pink one, and then of course considering a plus b as a single vector, we brought c also, and this pink and the c vector was added by parallelogram, and thus we got finally the sum of all three vectors a, b and c, and that is what we called as resultant. So, I mean, if n vectors are to be added, then we have to make the parallelogram n minus 1 times, as you know that very clearly, right? So, we were this becomes very cumbersome to in the case when number of vectors are many, you know. So, we were just trying to seek some other option, and we got one beautiful method, that is polygon law. And polygon law says that any number of vectors are to be added, just place them sequentially without any gap between head and tail. That's what I call as contiguous, right? Contiguous means having common boundary. Like I can say that Allahabad and Pratapgarh are contiguous districts because they have common boundary. But Allahabad and Kanpur are not contiguous because they don't have common boundary. So, in a contiguous manner, that is head to tail, I draw all the vectors which are to be added sequentially, and then finally I have left out with one unengaged tail and unengaged head. I join this and I get the sum of them all. This is what is the polygon law, and you can see the beautiful law. I mean, how comfortably it can add any number of vectors. You could see that. I mean, now I've made 8 vectors, you know, 8 vectors, and I place them A, B, C, D, E, F, G, H, and finally we have a unengaged tail over here, and unengaged head, right? And if I remove this, then you will get to see this. You can see that, yeah. After drawing all 8 vectors, we had an unengaged tail and unengaged head, and I joined this, and this is the resultant of them all, you know, right? But I said, further elaborated, do we require to make such a huge figure, that is place them sequentially A, B, C, D, E, F, G, H, sequentially alphabetical, or no, not at all. You have the freedom of placing them in any order. Look at that, A के बाद मैंने F किया, F के बाद B, B के बाद E, E के बाद G, G के बाद C, C के बाद what H, H, right, H के बाद D, and finally unengaged tail था, यानी तो इतने छोटे से फिगर में काम बन गया. And you can see that both the answers are absolutely identical as well. Both the answers are absolutely identical as well. So, this is what it is. So, so that shows the commutative nature of the vector addition. The order does not make any difference in which order you place them, you know. And then I wrote down the properties of vector addition, and I mean, you could see in this example itself, that is, the addition is commutative. That is, whether you add A to B or B to A does not matter at all. And vector addition is associative. That is, if 3 vectors are to be added, let's say using parallelogram law to add them all. So, question is, can we have the option of clubbing B and C first and then clubbing A? Yes, we can club in this manner as well. And if the placement of bracket does not make any difference, then the process is said to be associative. Okay, it is associative also. Cancellation law holds good. You know, if A plus B is equated to A plus C, somebody is claiming that A plus B is equal to A plus C, then of course you can cancel A and can say that B is equal to C. Sometimes in some process it is not allowed, you know. As I told you, in dot product it will not be allowed. So, having cancellation law holding good is also a virtue after all. That's why we wrote it as a property. Then we gone over to the technical issue. And we talked about who is admitting at this moment. Admit. Okay.
Okay, anyway. So then we gone on to some very technical discussion, that is sine rule and so on. Well, the sine rule is very simple. It is a tool which is brought from trigonometry to help develop Lami's theorem later. तो इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर इसका उपयोग करके हम लोग लामी थ्योरम डेवलप करेंगे, इसलिए मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री के इस टूल को रिकॉल किया. साइन रूल सेज दैट एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल इन फ्रंट ऑफ दैट. अगर ये एक ट्रायंगल है और ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड बी सी को हम लोग स्मॉल ए से, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करें, इफ वी शो दैट, देन ऑफ कोर्स this says that every side is proportional to sine of angle in front of that. That means a upon sine a is equal to b upon sine b is equal to c upon sine c. That means a small a upon sine a जो रेशियो मेंटेन करेंगे वो स्मॉल b upon sine b वही रेशियो मेंटेन करेंगे, वो स्मॉल c upon sine c रेशियो मेंटेन करेंगे. इसका प्रूफ भी मैंने किया. लेट्स नॉट ड्वेल अपॉन द प्रूफ बिकॉज इट विल वेस्ट लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव टाइम. The lecture is on there on the YouTube. You can, anybody newcomer can go through that to understand this. Now, come out of the sine rule for the time being. Let's talk about some beautiful theorem in vectors. I have come back to vectors. And this is triangle theorem. This is not triangle law. This is triangle theorem. Mind it. There is a difference between the triangle law, which is the method of adding two vectors by making triangle, and the triangle law. So, triangle law is law is only for two vectors, A and B, which are to be added. But triangle theorem is for three vectors, mind it. So, there is a crucial difference between the two. So, don't mix up between the two, you know. So, what does the triangle theorem say? Triangle theorem says that if there are vectors, if three vectors can be placed in magnitude and direction as sides of a triangle, taken in order, right? And they complete the triangle. And add this, so it will complete the sentence, I guess. And they complete the triangle, then they are in equilibrium. Okay, and the converse is also true. कहने का मतलब है कि कोई तीन वेक्टर को मैंने ऐड करना शुरू किया तो मैंने, I mean, if I show you separately, then you will understand more. So let me copy this. Maybe I can slide it and put it over here. किसी ने कहा भाई ये तीन वेक्टर मेरे लिए आप ऐड करिए, और ये तीन वेक्टर उसने ऐड करने को कहा मेरे को, और मेरे को क्या पता था क्या होने वाला है. तो मैंने वही पॉलीगन लॉ एज यूजुअल, मैंने पॉलीगन लॉ लगाया. मैंने कहा चलो भाई मैं ए ड्रॉ कर देता हूँ, और एक सीक्वेंस में बी या सी कुछ भी कर दीजिए, कोई डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. मैंने ए के हेड से बी का टेल रखा, और बी के टेल पे फिर मैंने बी के हेड पे मैंने सी का टेल रखा, और ये सोचा कि भाई जो गैप आएगा, मान लो अभी इसे अंडू कर दीजिए, मान लीजिए सी ऐसा आता, मान लीजिए सी ऐसा आता, ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, तो क्या कहते हैं हम, तो वी वुड हैव सेड दैट कि भाई दिस इज द वेक्टर एडिशन ऑफ थ्री. यही पॉलीगन लॉ कहता है. दिस इज व्हाट. बट व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस, अगर यहाँ पे कोई गैप ही ना बचे, लेट्स से इन डूइंग सो, अगर गैप यहाँ पे बचे, आई एम सो सॉरी, लेट मी टेक द येलो कलर, अगर यहाँ पे गैप बचे तब तो वेल एंड गुड, आई कैन ड्रॉ अ वेक्टर ओवर हियर. पर सपोज इन ब्रिंगिंग द थर्ड वेक्टर समथिंग लाइक दिस हैपेंस कि यहाँ शुरू करके जब आए तो यहीं पे टिक जाए और यहाँ कोई गैप ही ना बचे, देयर इज नो गैप लेफ्ट ओवर हियर एट ऑल, तो आई विल बी हेल्पलेस. हाउ कैन आई ड्रॉ द वेक्टर हियर? देयर इज नो स्पेस टू ड्रॉ द फोर्थ वेक्टर. That's why I am forced to, then will be forced to believe that their sum is null. Their sum is null. This is what it is. You can see here what is happening. See, I brought C, and when I place it over here, then it simply does not leave any gap here. Right? It does not leave any gap over here. This was A, this was B, this was C, and it is not leaving any gap over here. That's why we are forced to believe that A plus B plus C, which I call as R, A plus B plus C,
which I call as R normally, it does not exist at all. It is null. It is 0. And when the sum of any number of vector is 0, so they are said to be A, B, C, R. We say in different languages A, B, C are in equilibrium. Sure or not? It is another way of saying that sum of certain number of vector, 2 vector, 3 vector, 4 vector, 5 vector, 6 vector, sum of certain vector is null, so we say that they are in equilibrium. So this is what the triangle law says, कि if they complete the triangle, that means they don't leave any gap finally, then they are in equilibrium. And the converse is also true. Converse means the other way around. That is, if they are in equilibrium, they got to complete the triangle. They got to complete the triangle. There is no other way they can be in equilibrium but to be in but to complete the triangle. Okay. Now I said that if you notice it carefully कि मैंने आपको 2 टर्म पहले बताया था कि वेक्टर अगर कॉमन टेल में ड्रॉन हो, जैसे मान लीजिए ए और बी की बात करें, अगर ऐसे ड्रॉन हो कॉमन टेल में तब तो ए और बी के बीच के एंगल ये हो जाएगा, एग्री और नॉट. तब पर अगर सीक्वेंशली ड्रॉन है तो अगर मान लीजिए ए यहाँ ना हो के यहाँ होता, ए यहाँ ड्रॉ करते तो ये बी के हेड से ए का टेल या ए के हेड से बी का टेल कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए होता, तब मेरे को किसी एक को प्रोड्यूस करना पड़ता है. या तो इसको प्रोड्यूस कर दीजिए ये, तब ये एंगल इनके बीच का करेक्ट एंगल होता है. हमने आपको बताया हुआ था कि नहीं कि जब भी सीक्वेंशियल ड्रॉ करते हैं तो एक्सटर्नल एंगल देखते हैं, इंटरनल एंगल नहीं देखते. क्योंकि जो ये फिगर बनी है, जो हमने पॉलीगन से ऐड करने की कोशिश की थी, और फाइनली हमको पता चला कि अरे भाई इनका सम तो नल है. तो यहाँ पे देखिए ए के हेड पे बी की टेल है, बी के हेड पे सी की टेल है, सी के हेड पे ए की टेल है. तो दैट्स वाई ये इनके एंगल थोड़ी ना होंगे, एंगल इनके बीच में ये होंगे, इसलिए एक्सटर्नल अल्फा बीटा गामा. तो हमने बी और सी के बीच के एंगल को अल्फा कहा. बहुत ही डेलिबरेट चॉइस है मेरी. देखिए बी और सी इसमें ए इन्वॉल्व नहीं, इसलिए हमने पहला लेटर अल्फा लिया है, ए के सामने है इसलिए अल्फा कहा हमने से. अग्री और नॉट? इस सी और ए के बीच में एंगल को बीटा कहा और ए और बी के बीच में एंगल को गामा कहा. नाउ क्योंकि एक लाइन टोटल एंगल 180 होगा तो अंदर जो इंटरनल एंगल हो जाएंगे 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा हो जाएंगे. अंडरस्टैंडेबल है. अब अगर मैं साइन रूल को ब्रिंग इन करूं, साइन रूल कहता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट शेप इट हैज, एवरी साइड अपॉन साइन ऑफ एंगल इन फ्रंट ऑफ दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द 3 साइड्स, यू नो. तो यहाँ पे भी यही बात होगी भाई, यहाँ पे भी यही बात होगी. यहाँ पे ये साइड की लंबाई कितनी है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा? तो ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा. तो बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा और नॉट, और सी अपॉन साइन 180 माइनस गामा. पर मैं जानता हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम होते हैं. यही इस बात को समझा दें आपको बहुत अच्छे से कि तो यहाँ का लास्ट टर्न पे थोड़ा सा हेस था, अभी समय है तो खूब अच्छे से बता देते हैं कि जैसे ही आप क्वाड्रेंट बनाइए 4, तो मान लीजिए आपने cos 60 की वैल्यू निकाली, cos 60 की ना, 60 की. कोई पूछे कि भाई इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल इसका मिरर इमेज होगी और क्या, इसको इस लाइन को मिरर मानते हुए रिफ्लेक्ट कर दीजिए. तो यही इसका सप्लीमेंट्री एंगल 120 होगा कि नहीं होगा? तो ये 120 होगा कि नहीं होगा, राइट. तो 60 का सप्लीमेंट्री 120. तो अगर हम लोग कहें cos 60 डिग्री कितना है, तो वो 1/2 है. तो कोई कहे cos 120 कितना होगा, तो cos 120 जो होगा वो -1/2 होगा. एग्जैक्टली माइनस हो जाता है. पर साइन के साथ नहीं होता ऐसा. साइन के साथ दोनों का साइन सेम होता है, बिल्कुल नहीं बदलता. अगर इसी जगह मैं लिखता कि व्हाट इज साइन 60, तो साइन 60 अगर मैं लिखता तो साइन 60 डिग्री वुड हैव बीन √3/2, यू नो दैट. तो कोई पूछता साइन 120 कितना होगा सर, तो साइन 120 भी √3/2 होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस ही, क्योंकि साइन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है. श्योर और नॉट? तो इसीलिए कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का साइन अपने एंगल के बराबर होता है, पर कॉस में माइनस साइन लग जाता है. अग्री और नॉट? अगर कोई कहता है साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू वही होती जो साइन 150 की वैल्यू होती, क्योंकि 150 30 का सप्लीमेंट्री है. तो इन लाइक वाइज मैनर यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल के साइन सेम होते हैं, इसलिए साइन 180 माइनस अल्फा को साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस बीटा को साइन बीटा लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस गामा को साइन गामा लिख सकते हैं. And this precise statement, which is boxed over here, is known as Lami's theorem. This is known as Lami's theorem.
कि if three forces are, what is the statement? That's a beautiful statement. That's a beautiful statement. देखिए, if three forces are in equilibrium, every force is proportional to sine of angle between the other two. Can you see that? अल्फा कहाँ एंगल है? अल्फा जो है वो ए के वो ए अपॉन साइन अल्फा है ना, तो अल्फा कहाँ का एंगल है? बी और सी के बीच में। तो ए के अलावा जो दो हैं, ये ए तो अलग हो गया, बी और सी के बीच में जो एंगल है वो हो रहा है कि नहीं? ए अपॉन साइन अल्फा, श्योर और नॉट? तो इसीलिए तो मैंने लिखा ए अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन द बी एंड सी अदर टू, बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन द other two, b upon sine of angle between the a and c, other two, sin beta, and c upon sine of angle between the a and b, that is other two or not. So this is what is the Lamy theorem, other two. Now you understand this. If anybody has any doubt, you can unmute a microphone and ask me. I have recollected the discussion very thoroughly, right? So if you have any doubt, you can ask me here. Raise your hand. I mean, unmute a microphone and speak. Can you please explain this again, Lamy's theorem? Since where? Since when? आज पूरा लामी थ्योरम में तो एक्सप्लेन किया, कहाँ से समझ में नहीं आया? आप ये बताइए. Sir, from difference between sine and cos. ओ, Supplementary angles. हाँ, वो तो बहुत ही आसान था, वो तो मैं समझा दूंगा. देखिए कि मैं और भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे साइन 120 डिग्री ही साइन 60 डिग्री होगा, क्योंकि 120 और 60 सप्लीमेंट्री हैं. साइन 150 डिग्री ही साइन 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 एंड 150 है सप्लीमेंट्री. साइन 135 डिग्री ही साइन 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 एंड 135 है सप्लीमेंट्री. दे आर बोथ root 3 by 2. They are both 1 by 2. They are both 1 by root 2. तो दैट मीन्स चाहे आप किसी एंगल की बात करें या उसके सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, साइन की वैल्यू सेम होती है. बट कॉस में अगर देखें तो कॉस 120 डिग्री इज गोना बी माइनस कॉस 60 डिग्री. समझ गया इस बात को आप? माइनस कॉस 60 डिग्री. कॉस 150 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 30 डिग्री. कॉस 135 degree is equal to minus cos 45 degree. Understand this or not? तो सप्लीमेंट्री वो आप ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, मैथ्स की क्लास में. वो आप उसका पूरा अलाइड एंगल का फॉर्मूला है, जिसका डेरिवेशन होगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा. ये अलाइड एंगल्स कहलाते हैं. इनके फॉर्मूले क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में, जब ट्रिग्नोमेट्री क्लास होगी, अभी कल लर्न कर लीजिए कि कॉस का सप्लीमेंट्री एंगल नेगेटिव हो जाता है, बट साइन अपना मेंटेन करता है, क्योंकि साइन से दोनों क्वाड्रेंट में, साइन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव. बट कॉस जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है. कॉस जो है फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव हो जाता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट. ये इसको अच्छे से एलैबोरेट ट्रिग्नोमेट्री में किया जाएगा, नहीं तो ये मैथ्स की क्लास बन जाएगी पूरी. अग्री? राइट. नाउ यू अंडरस्टूड दैट वाई साइन 180 माइनस थीटा को मैंने 180 माइनस अल्फा को मैंने साइन अल्फा लिख लिया. कोई डाउट? राइट. एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट अबाउट दिस लामी थ्योरम? It is a very important theorem that will be very frequently required in Newton laws of motion. So that's why you need to be very clear about it. कोई डाउट? No, sir. Okay. So let me take an example. Let's say we have a three-way tug of war. Let us say that we have a three-way tug of war. Non-way tug of war is when a rope
is being held at two ends by two teams. They pull the rope, and the one who drags the rope towards their own team wins the tug of war. आपने खेला होगा टग ऑफ वॉर. यहाँ पे मैं एक मॉडिफाइड टग ऑफ वॉर बना रहा हूँ. एक टग ऑफ वॉर हो रही है जिसमें 3 रोप हैं, तीनों को नॉट बांध दिया गया है. राइट. ये एक टीम ए इधर पुल कर रही है, टीम बी इधर पुल कर रही है, टीम सी इधर. यहां भी ये नॉट है, ये नॉट है. तीनों की नॉट बना के 3 साइड रोप जा रही है. इधर जो है वो F1 फोर्स लग रहा है. श्योर. टीम ए जो है, टीम बी जो है F2 फोर्स लगा रही है, और टीम सी जो है वो F3 फोर्स लगा रही है. इट इज सो. अब इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल इज 90. दिस इज 90. दिस इज 120, and this got to be 150. होना ही पड़ेगा. सारे एंगल का सम 360 होना चाहिए. नाउ इट इज नोन दैट कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज नोन दैट F1 का मैग्नीट्यूड इज 500 न्यूटन. और नॉट जो है वो कहीं भी मूव नहीं कर रही है. दैट्स व्हाई नॉट इज इन इक्विलिब्रियम. नॉट किस में है? इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स दीज फोर्सेज आर, यू कैन राइट दैट F1, F2 and F3 are in equilibrium. F3 are in equilibrium. F1 is given to be 500 न्यूटन. 500 न्यूटन का फोर्स लगाया टीम ए ने, तो कह रहे हैं दूसरी टीम ने कितना फोर्स लगाया और तीसरी टीम ने कितना फोर्स लगाया. बताइए.
Yes, anybody? Anybody? Yes, anybody? सर कौन? सुदीक्षा हाँ बताइए. F2 is equal to 1000 by root 3 and F3 is equal to 1000. 1000 by root 3. Oh, that's a great answer. And it is equal to 1000. Oh, that's a very good answer. Very correct. Very correct. Very well done. चलिए मैं बताता हूं बच्चों को कैसे. It it was simply application of Lami's theorem and बहुत ही अच्छा आंसर. Very good. Right. Right. Very good. Right. देखिए बेटा, what does the Lamy theorem say? What does the Lamy theorem say? The Lamy theorem says that if there are three forces in equilibrium, every force is proportional to sine of angle between the other two. And you can see here, F1, F2, F3 are in equilibrium. That's why F1 upon साइन किस एंगल का साइन बोलिए, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू. तो F1 को छोड़ के बाकी दो कौन है, F2 और F3. उनके बीच में एंगल कितना है, 150. तो साइन 150 डिग्रीज. यू नो, श्योर और नॉट? राइट. राइट. So in place of this, it should be right. There was a little calculation mistake, I guess, but answer was very similar. Right. The F2 upon sine of 120 degree is equal to F3 upon sine of 90 degree. Sure or not? Sure? Right? Okay. So I plug it back. I plug it back and I write it as F1 is given to be 500 Newton. 500 upon 1 by 2. Sine 120 is 1 by 2. Did I write that on the last page or not? Notice here carefully. Sine 150 is 1 by 2. Sine 120 is root 3 by 2. Sure? Okay. That's good. So, is equal to F2 upon root 3 by 2 is equal to F3 upon 1. Now you cross multiply. There is a slight
maybe slight calculation error in the earlier calculation. So F2 कितना हो जाएगा? F2 will be, this 2 will go in the numerator, and this will be 2 into 500 multiplied by root 3 by 2. So that is going to be 500 root 3. So there's slight calculation error in the beginning. When she was so correct, root 3 factor was there after all. And as far as F3 is concerned, it was absolutely correct answer, 2 into 500, that is 1000 Newton. The F3 was absolutely correct, no doubt about that. So this was very good approach, very good. All of you have understood that? Anybody has any doubt? Anybody has any doubt? You can ask me by unmuting your microphone. Anybody? This is what is Lami's theorem, and this is a beautiful theorem. I mean, this will be so handy in Newton laws of motion. Newton laws of motion में बहुत ही ये काम आएगी और बहुत ही ज़्यादा इसका application होगा, बहुत ज़्यादा. It is abundantly required in Newton laws of motion later. That's why, since we are studying it vector for the purpose of physics, so I know what are the tools that you need to understand very thoroughly. किसी को कोई डाउट हो तो बोले कि कैसे अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया, कैसे किया, नहीं तो अदरवाइज आई प्रोसीड विद द डिस्कशन. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? Yes, sir. Right? Okay, that's good. That's good. Okay, so let me proceed with the further issue. The next issue that I want to, ये addition of vectors हो गया. Addition of vector में आपने देखा, अगर मैं अलग अलग segment में बात करूं तो let me go through this very briefly. In addition of vector, पहले हम लोगों ने two vectors का addition देखा, if you recall correctly, addition of two vectors by parallelogram law, by triangle law, by analytical method, understood that this was the addition of two vectors. And out here we have dealt with addition of more than two vectors, and here we have taught only two graphical method. Analytical method बाद में आप सीखेंगे, जब resolution सीख जाएंगे, then you will get to learn the analytical method for adding more than two vectors. For addition of more than two vectors, now we have only two graphical method, that is repeated to the parallelogram law, which anybody will hardly use, I guess. It is very cumbersome, it takes a lot of time, and then of course beautiful method and ultimate is the polygon law, which does the job in the jiffy, you know, तुरंत काम कर देता है, एक के बाद एक लगाते चले जाइए और बाद में खाली टेल को खाली हेड से ज्वाइन कर दीजिए. और उसी के एक्सटेंशन के तौर पे मैंने देखा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आऊंगा ट्रायंगल थ्योरम कि अगर पॉलीगन लॉ मैं तीन वेक्टर में लगा रहा हूँ, फाइनली मेरे को कोई स्पेस नहीं दिखा, तो दैट मीन्स एक ही कंक्लूजन निकलता है कि दे आर इन इक्विलिब्रियम, देयर सम इज नल, एंड व्हेन दे आर इन नल, so there is a beautiful theorem that is can be created for them, developed for them rather, I must say, that is using the sine rule together with the triangle law, and that is every force is proportional to sine of angle between the other two, and this is what is known as Lami's theorem. So it was nothing but it was just application of polygon law, जिसमें कि अगर इक्विलिब्रियम में हो तो उससे लामी थ्योरम निकल के आती है. And mind it, it is only valid, Lami's theorem is only valid for 3. It is not valid for 2, it is not valid for 4, it is not valid for 5 forces. It is valid only for 3 forces. अगर 3 forces हैं तभी आप लामी थ्योरम लगा सकते हैं. Agree or not? Right? Okay, that's good. Having said that, let me proceed to further discussion. Now, the natural evolution of discussion would be now the subtraction of vectors.
Subtraction is not gonna be a very big challenge to us because addition का ही modified version होगा भाई. So let's talk about subtraction of two vectors. और यहाँ पे more than 2 पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि subtraction is a binary process. Addition में तो कितने भी ऐड कर लीजिए, subtraction तो something minus something ही होता है. तो subtraction of vector rating डालते हैं. I wanted it to be this is better because I wanted capital letters. Subtraction of vectors. Granted two vector, how do I subtract them? Of course, I can use both methods, all the three methods for that matter. So first method would be parallelogram law. Strange, it doesn't make the first letter capital. Oh, I'm so sorry. Again, parallelogram law. Strange, wasting so much of time in this trivial issue. Oh my God, what is happening? Parallelogram law. Granted two vectors to me, A and B. I want to subtract them, one from another. This may be A, this may be B, you know. And I want A minus B. Sorry. How do I compute A minus B? Notice that मैंने अपना इंटरप्रिटेशन ही बदल दिया. A माइनस बी को मैंने इंटरप्रेट किया A प्लस माइनस बी. That means I'm not saying that I'm subtracting, I'm saying that I'm adding. पर अब की बार माइनस बी को मैं A में ऐड कर रहा हूं. कोई कहे भाई 8 माइनस 5 इज वॉट, तो आप कहिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा नहीं, 8 प्लस माइनस 5 लिख देता हूं. लो अब ये एडिशन प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया, यही वाली बात है. मतलब कि निगेटिव बी को मैंने ए में ऐड कर दिया. हाउ व्हाट यू मीन बाय निगेटिव बी? वेल यू कैन अंडरस्टैंड दिस. इफ दिस इज बी आई डुप्लीकेट, राइट? So can't you see that? अब देखिएगा ध्यान से स्क्रीन की तरफ. I am doing what? Rotate by 180 degree. I rotate by 180 degree. I just flip the arrow and head and tail. टेल को हेड बना दिया, हेड को टेल बना दिया. क्या आप देख सकते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस मैंने टेल और हेड को उल्टा कर दिया है. तो क्या ये माइनस बी हो जाएगा कि नहीं? Will it be minus b or not? It is minus b. Now what does the parallelogram law say? What does the parallelogram law say? The parallelogram law says that कॉमन टेल में ड्रॉ करके कंप्लीट करिए पैरेललोग्राम को, क्योंकि माइनस बी में ए को ऐड करना है. दैट्स वाई व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ड्रॉ देम इन द कॉमन टेल. सो आई ड्रॉ देम इन द कॉमन टेल एंड आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम. From the head of A, I draw a line parallel to B. From the head of A, I draw a line parallel to B.
and from the head of B, minus B rather, I draw a line parallel to A, and then from the common tail to the fourth vertex I draw the vector. This is my vector A, wasn't it? And will this be A minus B or not? This will be A minus B. Could you all appreciate that? No big deal about that at all. If you recall correctly, if you go back and see the parallelogram law of vector addition, I mean to say, you can see that the same law was there. And no big deal about this at all. That is common tail में draw करके मैंने कॉमन टेल से फोर्थ वर्टेक्स तक ले गए थे ऐड करने के लिए. यहाँ मैंने ए और बी को ऐड किया था, तो वाई नॉट डू दिस विद द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. ए एंड बी को मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए आई फॉलो द सेम थिंग, दैट इज माइनस बी को अब की बार मैंने ऐड कर दिया ए में. ओके, गुड इनफ. अगेन आई विल से दैट यहाँ पे दो एडिशनल लाइन बनानी पड़ रही है. इज इट कंफर्टेबल टू यू ऑल? आई विल से हाँ, हमारे पास दूसरा तरीका भी हो सकता है. क्यों? कौन सा? ट्रायंगल लॉ. Okay, so let's use triangle law. What is triangle law? Triangle law. Triangle law में सेम वेक्टर ए एंड बी को अब की बार मेरे को फ्लिप बी नहीं करना. यहां पे फ्लिप करना पड़ा था, आपने देखा था. डिड बी रिक्वायर टू फ्लिप इट और नॉट, सो दैट मैं माइनस बी बना लूं, उसको ए में ऐड करूं. यहां पे मेरे को फ्लिप भी नहीं करना पड़ेगा. मैं क्या करूंगा सिंपली कि आई ड्रॉ देम. लुक एट द ब्यूटी. हम लोग को अगर ट्रायंगल लॉ से ऐड करना था तो हम लोग को सीक्वेंशली ड्रॉ करना होता था. अब हम लोग सीक्वेंशली ड्रॉ नहीं करेंगे. व्हाट विल डू इज, ओ माय गॉड, इट इज सो सिंपल. आई ड्रॉ ए, I draw B, and I draw them in the common tail. Common tail, as if I am going to add them. जैसे कि मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं, वैसे मैंने ड्रॉ किया कॉमन टेल में. क्योंकि अगर ट्रायंगल लॉ से ऐड करना होता तो हमको तो सीक्वेंशियली ड्रॉ करना था. तब मेरे को याद है कि नहीं, सीक्वेंशियल ड्रॉ करना होता और फिर खाली टेल से खाली हेड तक लाइन ज्वाइन करना होता. हमने वो नहीं किया. अब की बार मैंने कॉमन टेल में ड्रॉ किया. You know what? Next line is the answer, A minus B. How? Just join the two heads. अब क्यों हेड टेल नहीं है, अब just join the two heads. B के हेड से A के हेड को ज्वाइन कर दिया. And I assure you such a simple process will give me A minus B. अगर आप विश्वास नहीं मानते तो आइए मैं इसको उठाता हूं, आप देखिए चलता हूं और यहां रखता हूं. देखिए क्या कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है कि नहीं. इज इट कंप्लीटली ओवरलैपिंग और नॉट? इज इट कंप्लीटली ओवरलैपिंग? इज इट और नॉट? यस इट डज. दैट्स व्हाई इतना कंफर्टेबल. अब सवाल ये उठता है, जो बच्चे मिस्टेक करेंगे वो ये है कि जब दो हेड मेरे को, लेट मी डू अवे विद दिस, जब ए और बी मैंने कॉमन टेल में ड्रॉ कर दिया तब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैं किसके यहाँ पे टेल रख के यहाँ हेड रखूं कि यहाँ पे टेल रख के यहाँ हेड रखूं. तो आंसर इज वेरी सिंपल कि अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो टेल वहां पे रखिए जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो टेल यहाँ से हेड तक, b से a तक आना है आपको. a से b तक नहीं जाना है, b से a तक आना है. तो टेल जो है वो सब्ट्रैक्टेड वेक्टर के हेड पे रखना है और जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे जाके हेड रखना है. So this is my a minus b. Isn't it very simple? As usual, triangle law in addition or subtraction both are very comfortable as compared to parallelogram law. Right? Now let me go over to third method, and that is analytical method. Can we all of you? Have you taken a note of it? Yes, sir. हाँ बोलिए. So can you please explain parallelogram law again? सब्ट्रैक्शन के लिए Yes, sir. देखिए, सब्ट्रैक्शन के लिए पैरेललोग्राम लॉ जो है, लेट मी डू अवे विद दिस. तो आई विल मेक वंस अगेन, तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. आई डोंट थिंक
कि इट इज डिफिकल्ट, ओ माय गॉड, rather than deleting I duplicated. Okay, what I said is कि I'll change the interpretation. a प्लस बी को, a माइनस बी को मैं a माइनस बी फील ही नहीं करूंगा. What I'll feel as a plus minus b. And what would be minus b? माइनस बी वुड बी कि मैं इसकी हेड को इधर और टेल को इधर कर दूं तो माइनस बी हो जाएगा. ये देखिए, देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा हूं. क्या लिखा हुआ है यहां पे, रोटेट 180 डिग्री. तो 180 डिग्री रोटेट करने हेड और टेल पलट जाएंगे कि नहीं पलट जाएंगे. तो रोटेट 180 डिग्री. तो दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई डू. तो विल दिस बी माइनस बी और नॉट, विल दिस बी माइनस बी और नॉट, राइट. तो मैंने अब क्या किया, क्योंकि a में माइनस बी को ऐड करना था तो पैरेललोग्राम लॉ से करना है, तो मैंने a और माइनस बी को कॉमन टेल में ड्रॉ किया. कॉमन टेल में ड्रॉ करने के बाद यू नो व्हाट आई नीड टू डू, I need to draw a line parallel to my b, we call it minus b, whatever you call it, orientation is same after all, and place it on the head of a, and you draw a line parallel to a and place it on the head of b, don't you? Thus completing the parallelogram. Thus completing the parallelogram or not? अब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या करता है, कॉमन टेल से स्टार्ट करके यू हैव टू गो टू फोर्थ वर्टेक्स. So will this give me a minus b or not? Understood? कोई doubt? Yes, sir, no doubt. Okay. So you have the parallelogram law of vector subtraction, you have the triangle law of vector subtraction. Now the third method is analytical. Simple. Granted two vectors the same, granted two vectors a and b, I want the answer without drawing the figure. तो दो बातें. पहली बात तो इनपुट में क्या क्या मांगूंगा, फिर वही बात शुरू कर रहा हूं मैं. इनपुट में क्या क्या मांगूंगा, कोई बोलेगा मैं फोन पे हूं ना, मेरे पास पेपर पेन नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई दो वेक्टर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनका मैग्नीट्यूड बताइए, क्योंकि डायरेक्शन तो फोन में नहीं बताई जा सकती ना. तो उनका मैग्नीट्यूड बताइए और उनके बीच का एंगल मेरे को बता दीजिए. ठीक है. एंड आउटपुट हमसे क्या चाहा जाएगा, हम क्या बताएं, आउटपुट मेरे से क्या डिमांड किया जाएगा. आउटपुट मांगा जाएगा भाई कि जो ये पिंग वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए. तो क्या पिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं a माइनस बी लिख सकता हूं? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये a और b के मैग्नीट्यूड को स्केलर तरीके से पैक करेगा. तो इसको शो करने का तरीका है, अगर सिंगल वेक्टर r होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को मैं r डिनोट कर देता हूँ, एरो हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड हो जाता है. जैसे यहाँ पे एरो हटा दिया, a का मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ एरो हटा दिया, यहाँ b का मैग्नीट्यूड हो गया. यहाँ पे क्योंकि a माइनस बी मैंने लिखा है, r मैं इसके लिए वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसके मैग्नीट्यूड को मैं लिखूँ मॉडुलस a माइनस बी. मॉडुलस a माइनस बी मतलब कि a माइनस बी जो वेक्टर आया पिंक वाला उसका मैग्नीट्यूड. समझ में आ गया ये बात कि नहीं? सिंपल मॉडुलस a माइनस बी. तो इट इज नॉट सेम एज a माइनस बी, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. एंड दूसरी चीज ये पूछूंगा भाई कि ये जो पिंक वेक्टर है वो एक साथ कितना एंगल बना रहा है. क्या पिंक वाले वेक्टर का एक साथ एंगल सही दिखा रहे हैं कि गलत दिखा रहे हैं? हमने आपको बताया था कि नहीं कि दो वेक्टर अगर क्या हो, दो वेक्टर कॉमन हेड में हो, कॉमन टेल में हो, चाहे वो कॉमन हेड में हो, बताया था कि नहीं बताया था आपको? उनके हेड कॉमन हो, उनके बीच का एंगल सही एंगल होता है, पर अगर सीक्वेंशियल हो तो एक्सटर्नल एंगल देखना चाहिए. तो यहाँ पे जो है दोनों वेक्टर जो है वो कैसे ड्रॉन है, यहाँ पे दोनों वेक्टर कॉमन हेड में ड्रॉन है, तो हाँ दोनों के बीच का एंगल बिल्कुल सही दिख रहा है अल्फा.
तो ये एंगल अल्फा मेरे को चाहिए, इतनी चीज मेरे को चाहिए। कैसे निकालूं? वही सारा काम, वही सारे कंस्ट्रक्शंस, वही सारे डेरिवेशन, सबकी बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। नो मेरे को दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। क्या आप देख सकते हैं? दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल। आपको दिख रहा है? दो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सी फैसिलिटीज होती हैं जो मैं यूज करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, मैंने लेफ्ट वाले राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई। व्हाट इज साइन थी, व्हाट इज कॉस थीटा? cos theta is gonna be base upon hypotenuse, base कितना, base upon hypotenuse कितना है इसका, hypotenuse कितना है लेफ्ट वाले का, is it b or not? तो it is base upon b, you know, कोई डाउट? implies that b कितना, base कितना हो गया लेफ्ट वाले का, b cos थीटा हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस मच इज b cos थीटा, दिस मच इज b cos थीटा। पहली बात तो पूरा लिख दें, कितना था पूरा? तो a था, ये आपको पता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पूरा a था क्योंकि वेक्टर इसकी लंबाई a थी। पर इतना लेफ्ट वाले का बेस जो भी हमने निकाला, इतना इतना यहां से यहां तक, वो कितना आ गया बेटा? b cos थीटा आ गया है। अब साइन थीटा लेफ्ट वाले ट्रायंगल में लिया, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बी, implies that perpendicular is equal to b sin थीटा। ये मेरा b sin थीटा हो गया। तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है मैंने, ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर की लाइन है, ये कितनी हो गई बेटा? ये हो गई, इसकी लंबाई, छोटा फिगर है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, b sin थीटा इसकी लंबाई हो गई। वी गेट इट एज b sin थीटा। नाउ आई डायरेक्टली कम ओवर टू द राइट साइड ट्रायंगल। मैं सीधे अब इस ट्रायंगल पे आ गया। किस ट्रायंगल पे? ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल, इसको मैंने ब्राउन कलर से या ऑरेंज कलर से कह लीजिए, मैंने हाईलाइट किया है। डिड वी हाईलाइट इट और नॉट? मैं राइट वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे आ गया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो ये बताइए बेटा, सबसे पहली बात, इतना क्या कितना होगा? इतना कितना होगा बोलिए? क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट b cos थीटा है और टोटल a है, तो ये पार्ट a माइनस बी cos थीटा होगा कि नहीं होगा? तो इस ट्रायंगल का बेस जो है a माइनस बी cos थीटा हो गया। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज है मॉडुलस a माइनस बी, यही है कि नहीं? स्क्वायर बोली है कि नहीं है? इसी का मैग्नीट्यूड, इसी की लेंथ निकालना है। व्हाट इज द बेस? बेस इज a माइनस बी cos थीटा, बेस इज a माइनस बी cos थीटा होल स्क्वायर। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज b sin थीटा, तो b sin थीटा होल स्क्वायर। I expand this, तो मॉडुलस a माइनस बी, मॉडुलस a माइनस बी स्क्वायर, हमको मॉडुलस a माइनस बी निकालना है, बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे, श्योर और नॉट। मॉडुलस a माइनस बी स्क्वायर इज गोना कम आउट टू बी a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां से b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप देख सकते हैं, इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो आई गेट इनसाइड द ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta. Won't I get cos square theta plus sin square theta? And that would of course be equal to 1. Will that be equal to 1 or not? And thus you can see at once
the same thing can be written as a square plus b square, ये दोनों मिलकर बी स्क्वायर। आइए यहाँ लिख दें, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta is equal to 1. It is the identity which must have been taught to you in class 10 trigonometry, right? So a square plus b square, and of course you have minus 2ab cos theta. आपको याद है कि एडिशन वाले में एनालिटिकल मेथड में क्या डिफरेंस था? आप ध्यान से देखिएगा, नोटिस यहाँ पे इस माइनस की जगह उसमें बस ये प्लस था और कुछ नहीं था। सब्ट्रैक्शन में यही माइनस लग गया, इतना सा अंतर आया, बाकी डेरिवेशन इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। तो व्हाट इज मॉडुलस ए माइनस बी, जो हमारा मेन पर्पस था कि भाई मैं बिना डायग्राम बनाए फॉर्मूले से बता पाऊं, तो मॉडुलस ए माइनस बी इज गोना बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ना ये, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. Sure? Now, what is the other output that is demanded? Other output भैया हमारा एंगल बता दीजिए कि सब्ट्रैक्शन का एक साथ एंगल कितना होगा, कितना एंगल होगा ये बता दीजिए। तो बहुत आसान है, अरे भाई इसी राइट वाले ट्रायंगल में हमने tan अल्फा लिखा, तो व्हाट इज tan अल्फा गोना बी? tan अल्फा इज गोना बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का यही फॉर्मूला होता है, श्योर और नॉट? tan alpha is gonna be perpendicular upon base, sure? So which can be written as tan alpha is equal to perpendicular is how much? देखिए b, sin theta. good, very good. b sin theta is b sin theta upon the base is a minus b cos theta. These are the two formulas with the help of which I'll be able to find the magnitude and the angle. Can you see the beauty of this analytical method? हमको फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, right? A very small question I take to end the lecture today, right? And you need to answer this very clearly. Anybody has any doubt about it? All the three methods of vector subtraction of vectors, parallelogram law understood very well कि हमने इसको ऐसा माना ही कि एडिशन है, बस माइनस बी के साथ एडिशन है। ट्रायंगल लॉ वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू फ्लिप नथिंग, जैसे है वैसे कॉमन टेल में ड्रॉ कर दीजिए। बस आप जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे शुरू करके जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, हेड टू हेड आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। एनालिटिकल मेथड भाई आपको अगर ए बी और उनके बीच का एंगल बताया गया है तो आप पूछा गया इनका डिफरेंस हमको चाहिए, तो आप खट से बता देंगे कि भाई आंसर इज वेरी सिंपल, the answer is the magnitude is under root a square plus b square minus 2ab cos theta and the angle is b sin theta. यहाँ पे भी देखिए एडिशन वाले फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में केवल इतना अंदर है कि एडिशन फॉर्मूले में यहाँ केवल प्लस था, आपको याद है b sin theta अपॉन a प्लस b cos theta था, और यहाँ पे बस माइनस है, केवल इतना सा अंतर बढ़ता है, मतलब दोनों जगह बस b के आगे माइनस लग जाता है, दैट्स ऑल। b के आगे माइनस लग जाता है, एडिशन वाला फॉर्मूला ही सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला बन जाता है। ओके, लेट मी take a small question to you to apply, you know. So work it out. Let me write it down. You are happy with this, all the derivation, right? Right. So let me take a very small question. Sum of two
unit vectors is a unit vector. Find the magnitude. केवल magnitude पूछा है. Find the magnitude of their vector difference. Find the magnitude of their vector difference. Any answer? Any answer?
ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? Sir, हु, कौन? Sudiksha. सुदीक्षा, बताइए सुदीक्षा। The answer is root 3. Root 3 is a great answer, beautiful answer, great, ultimate, ultimate, ultimate. Let me work it out now. Let me work it out. That's a very great answer. That's a very great answer. Very good. Keep it up. देखिए बेटा, आपको मैं पहले भी करा चुका हूं, पर मैं फिर से कराता हूं कि अगर देखिए दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से शो करते हैं, ए कैप बी कैप, कैप लगाते हैं। आपको बताया था ना मैंने, कोई वेक्टर अगर का मैग्नीट्यूड कुछ और है तो उसको मैं वेक्टर ए लिखूंगा, पर किसी वेक्टर का अगर किसी ने बता दिया कि उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, मान लो उसका लेंथ यूनिट है, तो उसके लिए सिंबल हम लोग स्पेशल यूज करते हैं ए कैप। कोई और वेक्टर है तो उसको लिखेंगे बी कैप, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। तो इन्होंने पहले क्लेम किया, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं हालांकि एडिशन, अब मैं इसका पार्ट मैं करा चुका हूं। Oh my God, what's there? It's not, what's happening? Okay. इसका मैं एक पार्ट करा चुका हूं। Where is that? इसका मैं एक पार्ट करा चुका हूं। फिर से मैं उसको रिपीट करता हूं, राइट? सिद्धिका शर्मा लेफ्ट क्या? आई डोंट नो व्हाई। ओके, नो इश्यूज। आइए कम बैक। तो फिर से मैं कराता हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये ग्रांटेड है ए कैप प्लस बी कैप, दोज हु अटेंडेड प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास मस्ट बी नोइंग दैट कि इफ टू यूनिट वेक्टर आर एडिंग अप टू वेक्टर टू ये यूनिट वेक्टर, तो एंगल बिटवीन, ये कराया था कि नहीं, एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज 120, याद है? ए कैप एंड बी कैप इज 120 डिग्री, ये बताया था ना। खैर फिर से मैं करा दूं, कोई बात नहीं है। दो यूनिट वेक्टर का सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो आइए पहले देखें सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर कैसे। देखिए एक वेक्टर ए कैप ये है, श्योर, ओके। नाउ एक वेक्टर ए कैप पैरेललोग्राम लॉ से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, एनालिटिकल से कर लीजिए, ये है, राइट। नोटिस दैट अगर मैं छोटा एंगल रखूंगा, अब आपको एक बार गलत करके दिखाता हूं। अगर मान लीजिए ए कैप ये और बी कैप ये होता और मैं पैरेललोग्राम लॉ से इनको ऐड करता, तो लुक एट दैट हाउ जाइगेंटिक द सम वुड हैव कम आउट टू बी। कितना बड़ा आता, ये यूनिट ना होता। दैट्स वाई हमने डेलिबरेटली इसको ऑब्ट्यूज एंगल पे रखा बी कैप को, राइट, जिससे कि मैं किसी तरह से इनका जो एडिशन है वो भी यूनिट आ पाए, उसकी लेंथ भी 1 आ पाए। तो ये ए कैप है, ये बी कैप है। मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एडिशन इनका यूनिट है, तो इसका मतलब कि, राइट, ये इनका एडिशन है और ये एडिशन भी इनका यूनिट वेक्टर है, यही मैंने बताया था कि नहीं। अब देखिए इतना बड़ा एंगल ना रखते तो ये बहुत लंबा हो जाता कि नहीं, जैसे तो एंगल बढ़ाएंगे वो भी का, तो वैसे ही पिंक वेक्टर की लेंथ कम होती जाएगी। आप बना कर देख सकते हैं। अब ये बताया गया कि भाई ए भी यूनिट है, बी भी यूनिट है। अब पैरेललोग्राम की फ्रंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी यूनिट हो गया, ये भी यूनिट हो गया, और रिजल्टेंट भी सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये भी यूनिट हो गया। तो thus I get two इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये देखिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं, 1 1 1, बोलिए हाँ है ना। और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, कौन सा भाई, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, कौन, ये और ये भी 1 1 1 है। अगर दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए तो ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60, तो ये टोटल एंगल 120 हो गया ना। यही हमने लास्ट वन पे कराया था। खैर उसकी बात ना करें, 120 तो एंगल होगा ही, ये बात तो आपको कंफर्म ही हो गया। अब आइए मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंस देखूं। अब डिफरेंस, दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे देखा जाता है बेटा? दो वेक्टर का डिफरेंस होता है कि आप ट्रायंगल लॉ से कॉमन टेल में ड्रॉ करिए और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे शुरू करके जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। दिख रहा है कि नहीं आपको?
क्योंकि मेरे को a माइनस बी का मॉडुलस हमको क्या निकालना था, मॉडुलस a कैप माइनस b कैप निकालना था, a और b के वेक्टर डिफरेंस का मॉडुलस निकालना था, वो कितना बड़ा है। तो मैंने पहले a कैप माइनस b कैप निकालना था। a कैप माइनस b कैप क्या होगा, a कैप माइनस b कैप जो होगा, आइए मैं फिर से ड्रॉ कर लूं, a कैप और b कैप को मैंने कॉमन टेल में ड्रॉ किया है। मैं करने को तो मैं उसी फिगर में कर सकता हूं, पर मैं जानबूझ के अलग कर रहा हूं जिससे आप समझ में आया आपको। ये a कैप और b कैप को मैंने ड्रॉ किया है, डिड आई और नॉट, a कैप एंड b कैप। व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम वेयर, क्योंकि b कैप सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहां से शुरू करके a कैप तक, यही होगा कि नहीं, a कैप माइनस b कैप, यही होगा कि नहीं, a कैप माइनस b कैप। अब सवाल ये उठता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड आइए यहां पे देख लें इसका मैग्नीट्यूड। अगर देखिए ये इसी पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना, होगा ना, बिल्कुल होगा, श्योर और नॉट। और क्योंकि ये एक रोम्बस होगा, रोम्बस क्या होता है, वो पैरेललोग्राम जिनकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस होगा और रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस व्हाइट वाले की लेंथ मेरे को चाहिए थी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, बोलिए अग्री और नॉट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए इतनी लेंथ कितनी होगी, इतनी लेंथ कितनी होगी, बोलिए ये इतनी लेंथ कितनी होगी, इतनी लेंथ जो हमने ऑरेंज कलर से दिखाई है, क्या ये हाफ होगी कि नहीं होगी, विल इट बी हाफ और नॉट, क्यों, ये पूरी लेंथ जो है वो 1 है, तो इतनी लेंथ हाफ हो जाएगी। अब बताइए मेरे को ये अगर चाहिए इतना, तो पाइथागोरस थ्योरम से इतनी लेंथ कितनी होगी, बोलिए एक नया कलर लेते हैं और शो करते हैं। ये देखिए ये लेंथ कितनी होगी, यही लेंथ मेरे को निकालनी है, ये लेंथ कितनी होगी, बोलिए ये लेंथ होगी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये होगा, ये लेंथ इक्वल होगी अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, बोलिए परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, या बेस स्क्वायर जो भी कर लीजिए, बोलिए अग्री और नॉट, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर मैं इसको बेस इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज कहूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या ये जो बेस होगा वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो विच इज अंडर रूट हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, क्या ये हो गया कि नहीं, अंडर रूट 1 माइनस 3/4, तो दैट इज अंडर रूट 3/2 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, अग्री और नॉट। तो व्हाट इज मॉडुलस a माइनस बी, इसी वाले का दुगना कि नहीं, देखिए ये और ये बराबर है कि नहीं है ना, तो इसीलिए दिस विल बिकम इक्वल टू √3 और नॉट। दैट्स अ ग्रेट आंसर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट, किसी को कोई डाउट। चलिए मैं छोटे मेथड से करता हूं, आई डू इट बाय अ शॉर्टर मेथड 2, आई डू इट बाय अ शॉर्टर मेथड। आपको पता है कि दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस, इस फॉर्मूले को यूज कर लिया सिंपली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस वुड बी मॉडुलस a कैप माइनस b कैप, आई एम राइटिंग हियर वंस अगेन बाय मेथड 2, नोटिस दैट मॉडुलस a कैप माइनस b कैप would be what, इस फॉर्मूले को यूज करिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है ना, ओके, तो दिस गोना बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ओके। अच्छा ये बताइए cos 120 कितना होगा, यहां पे लिखते हैं, what is cos 120, याद है ना, पिछले पेज बताया था, cos सप्लीमेंट्री एंगल के लिए नेगेटिव हो जाता है, cos सप्लीमेंट्री एंगल के लिए नेगेटिव हो जाता है, cos 120 is minus cos 60, that is minus 1/2, am I correct or not? Okay, having said that, तो cos 120 is minus 1/2, तो मैंने यहां प्लग कर दिया, I plug it over here, what do I get? I get it as under root a का मैग्नीट्यूड कितना 1 स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड कितना 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1/2, क्योंकि cos 120 is minus 1/2, तो कैन यू सी दैट इट विल गिव मी व्हाट, अंडर रूट 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 कैंसिल हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1, तो दैट इज गोना बी
root 3. Is it or not? That is gonna be root 3. What a beautiful answer given by Sudiksha in the beginning, and that is very good answer. Happy you all? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. No. So let me come to normal screen and sign off. I'll just interact with you and then sign off. Okay. So, okay. Okay. One sec. Yeah. Can you all see me now? Right. So, this is where it is. I will publish this video, today's video, somewhere around 11 o'clock or so. In the last one, it was published pretty late at maybe 1:30 in the night. There was some technical issues, and that's why. But I did it in that day, day before yesterday night only at 1:30. Today, I'll try to do it by 11 o'clock. So anybody want to revise or any of your friend wants to be the part of, अगर कोई आपका friend अगर नए क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको सजेस्ट करिएगा कि पहले जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब में मैं डालता जा रहा हूँ और वो ऐप में उसकी लिंक भी डालता हूँ, तो देख लें और उसके बाद फिर वो आएँ जिससे कि रिवीजन का टास्क कम हो जाए. तो लेट मी साइन ऑफ.